دل میں بسائے رکھیے، جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھیے، اور یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھیے۔ عشق نبی دل میں بسائے رکھیے، اور یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھیے۔ عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، جان دے کے بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے۔ جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھیے، اور یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھیے۔ عصمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، جان دے کے بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر بلند آواز سے آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھیے، جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھیے، اور یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھیے، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھیے۔ عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، جان دے کے بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے، جان دے کے بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے۔ اور آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے۔ حضرات مکمل زندگی کے ساتھ بیٹھیں، کتنا گولڈن چانس ہے، خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر میں ہم اور آپ خدا اور رسول کی ذکر کی محفل رچائے بیٹھے ہیں، ایک خدا والے کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ ایسے موقع کبھی کبھی آیا کرتے ہیں، یہ سنہرا موقع ہاتھ لگا ہے، سر کی آنکھوں سے آپ حضرت کی زیارت کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا عالم کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے امتی اپنے نبی کو دیکھنا۔ آپ جان لیجئے عالم کہتے کس کو ہیں، سند کو نہیں کہتے ہیں، مارکشیٹ کو عالم نہیں کہتے ہیں، بلکہ علم و عمل کے پیکر کو عالم کہتے ہیں، سند اور مارکشیٹ کو عالم نہیں کہتے، ورنہ بہت لوگ ایسے مل جائیں گے علم و عمل کے پیکر کو علم کے اعتبار سے اس کا عمل بھی ہو وہ عالم۔ سند اور مارکشیٹ یہ عالم نہیں، اور ان کے دیکھنے پر عبادت نہیں بتایا گیا، تو آپ کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے، بس سر کی آنکھوں سے حضرت کی زیارت کرتے رہیے، اور تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کیجئے۔ حضرات سنجیدگی کے ساتھ آپ دل کے کانوں سے سمجھنے کی غرض سے سنیں گے۔ وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں کہ دنیا کے نوجوان نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، مگر یہ نوجوان تعریف کے لائق ہیں کہ انہوں نے کہا ہم اسلامی نوجوان، ہم کیا کیا نہیں کریں گے، ہم کریں گے تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل رچائیں گے، عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے شیخ طریقت کو بلائیں گے، ہم ان کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے، دین کی پیاری پیاری باتیں بھی سنیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم ان نوجوان کے اس خلوص کو قبول فرمائے، آمین، اور ان کے لیے اسی کو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ حضرات میں نے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ جس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں رب فرماتا ہے
ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، تو ہم اپنے کو بھی سمجھ لیں اور اپنے اسلام کو بھی سمجھ لیں اور یہ سمجھ کر کے اٹھیں انشاءاللہ الرحمن۔ اگر سمجھ کر کے آپ یہاں سے گئے اور اسی کے مطابق آپ نے زندگی گزاری تو انشاءاللہ ہوائیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، آپ کے قدم نہیں ڈرنا۔ بے شک بے شک حسرات، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑی مضبوطی سے شیخ طریقت کا دامن بھی پکڑے رہے۔ تو کہ تقریر آپ سنیں گے صحیح ہے، مگر جان جائیے درسگاہ مولوی بناتے ہیں، مولا نہیں بناتے ہیں، خانقاہیں ہیں جو مولا بنایا کرتی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا مسلمانوں، میں نہیں کہتا، بلکہ آؤ اور اس عالم سے دیکھ پوچھو جس عالم کو دنیا علامہ رومی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ علامہ رومی اپنی مثنوی شریف میں لکھتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی تھا، درسگاہ کا پڑھا تھا، صرف مولوی تھا، مولا نہیں بنا۔ کب تک مولا نہیں بنا؟ جب تک اللہ والے کا دامن نہیں پکڑ لیا اور جب تک اللہ والے نے اپنی نگاہ کرم سے پلا نہیں لیا تب تک وہ صرف مولوی تھا، مولا نہیں تھا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ کہتے ہیں کہ میں روم کا مولا نہیں بنا تھا، مولوی تھا، صرف مولوی تھا، مگر جب ایک اللہ والے کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا، اللہ والے نے مولوی سے مجھ کو روم کا مولا سگاہیں مولوی بناتی ہیں، خانقاہیں مولا بناتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ والے مولا بنایا کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارا جو رب کا پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، ہم اپنے کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ اسلام کو بھی سمجھ لیں گے۔ آپ اپنے کو دیکھیے، اپنے کو جب دیکھیں گے تو ہم اور آپ دو چیزوں کے مجموعہ نظر آئیں گے۔ ایک ہماری باڈی ہے، پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک، یہ پوری باڈی ہے، یہ ہمارا ڈھانچہ ہے، یہ ہمارا پتلا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں۔ پیر کے ناخن سے لے کر کے پوری باڈی کو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پیر ہے، پیر کا ناخن ہے، یہ پنجہ ہے، یہ پڈلی ہے، یہ کان ہے، یہ کمر ہے، یہ پیٹھ ہے، یہ شکم ہے، یہ سینہ ہے، یہ شانہ ہے، یہ کندھا ہے، یہ گلا ہے، یہ چہرہ ہے، یہ سر ہے، یہ پیشانی ہے، یہ بھون ہے، یہ پلک ہے، یہ پتلی ہے، یہ مسکان ہے۔ یہ سب باڈی کے نام ہیں مسلمانوں، یہ باڈی کے نام ہیں، انہی کو ہم دیکھتے ہیں۔ مگر مسلمانوں اس کے اندر ایک جوہر لطیف ہے جس کو روح کہتے ہیں، اس روح کو ہم نے نہیں دیکھا۔ پتا چلا انسان ان دو کا مجموعہ ہے، ایک کو جسم کہتے، دوسرے کو جان کہتے۔ جس کو دیکھتے ہیں اس کو جسم کہتے، اور جس کو نہیں دیکھتے اس کو روح کہتے، اس کو جان کہتے۔ جیسے ہم دو کے مجموعہ ہیں ویسے ہمارا مذہب اسلام بھی، ہمارا دین اسلام بھی دو کا مجموعہ ہے۔ وہاں ایک کی حیثیت باڈی کی طرح سے ہے، ڈھانچے کی طرح سے ہے، پتلے کی طرح سے ہے، جسم کی طرح سے ہے۔ جیسے جسم نظر آتا ہے ویسے ہی وہاں ایک حصہ نظر آتا ہے۔ یہاں جسم کے الگ الگ حصے کا الگ الگ نام ہے، کسی کو پنجہ کہتے ہیں، کسی کو پگلی کہتے ہیں، کسی کو ران کہتے ہیں، کسی کو کمر کہتے ہیں، کسی کو سر کہتے ہیں، کسی کو پیشانی کہتے ہیں۔ سب کے نام الگ الگ ہیں مگر سب باڈی ہی ہے۔ ویسے ہی مسلمانوں ہمارے اعمال دیکھے جاتے ہیں، قیام کرتا ہے آدمی نظر آتا ہے، رکوع میں جاتا ہے آدمی نظر آتا ہے، سجدے میں جاتا ہے آدمی نظر آتا ہے، قاعدے میں ہوتا ہے آدمی نظر آتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے آدمی نظر آتا ہے، مسلمانوں زکات و خیرات دے رہا ہے آدمی نظر آتا ہے۔ یعنی آدمی کا عمل نظر آتا ہے مگر آدمی کا عقیدہ اور ایمان نظر نہیں آتا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں جو
और इसकी कीमत कब तक, इस जिस्म की कीमत कब तक, जब तक वो रूह इस जिस्म के अंदर है तब तक इसके साथ हमारा आपका सलूक क्या होता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। रूह जब तक जिस्म के अंदर, वो जान जब तक जिस्म के अंदर, मगर जैसे ही वो रूह निकली लोग बड़ी तेजी करते हैं घर से उसे निकाल देने। मैं कहा 60 साल तक जो कमा करके एक एक ईंट जोड़ करके इस बिल्डिंग को बनाया था, ये उसके साथ बेवफाई क्या कि उसको एक कोठरी में रहने तक नहीं देते, बड़ी जल्दी वहां से निकाल करके शहर खमूसा में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हो। ये कोठरी में बड़ा रहता तो क्या होगा, एक कोठरी में उसको रहने देते। कहा ये मर चुका। मैं कहा क्या इसके अंदर कमी आई, क्या चीज नहीं है, पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक पूरी बॉडी तो नजर आ रही, पूरी बॉडी तो दिखाई दे रही, कमी क्या है। कहा तुम मौलवी हो गया और अभी ये नहीं समझा, इसकी रूह निकल गई। मैं कहा निकल गई है, निकल जाने दो, कल थी तब भी तो नहीं देख रहे थे, कल जब इसके अंदर थी तब भी तो नहीं देख रहे थे, आज निकल गए तब भी नहीं देख रहे हो। वही चीज न निकली है जो न कल नजर आई थी न आज नजर आ रही है। बेशक बेशक, जिसको हम देख रहे थे वो तो सब है, पैर तो है, अंगुलियां वैसे सलामत हैं, हाथ पांव की अंगुलियां सलामत हैं, आंख के गड्ढे में आंख का ढेला भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह में जुबान भी है, पेट में आंख भी है, पूरी बॉडी मौजूद है। वही चीज न निकली है, कल थी तब भी नजर नहीं आ रही थी, आज निकल गई है तब भी नजर नहीं आ रही। बाकी तो सब कुछ है ये। तो उसके निकल जाने से इसको कहां ले जा रहे हैं, कहा उसके निकल जाने के बाद बस एक ही जगह है हमारे लिए कि इसको नहवाएंगे, कफनाएंगे, खुशबू में बसाएंगे और ले जाकर के शहर खमूसा में इसको बसाएंगे, गोरे गरीबा का पैरंग बना देंगे, मनो मिट्टी के नीचे इसे दबा देंगे, सुकूदे खाक कर देंगे। मैं कहा क्या इसके साथ ये सलूक, ये बताओ। कहा अगर इसको समाज में रखा, ये मुर्दा जिस्म अगर इस बॉडी को समाज में रखा तो इससे ताफुन पैदा होगा और उससे ताफुन का धुआं उठेगा, गंदे जरासीम जन्म लेंगे और पूरा समाज मुर्दा हो जाएगा, पूरा समाज बीमार हो जाएगा। इसलिए हम मजबूर हैं, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो, हमारे लिए मजबूरी है कि इसको समाज से हम निकाल दें। मुर्दों से दूर लोग रहते हैं, नहलाया और ले करके गए, ले जाकर के कब्र में लेटा दिया, सुपुर्दे खाक कर दिया। मुसलमानों किसकी बुनियाद पर ये सलूक किया, सिर्फ जिस्म से रूह निकल गई। मैंने पूछा अब तो तूने बता दिया कि वो रूह जो नजर नहीं आती है सारी कीमत उसी की है, अगर वह निकल जाए तो पूरी बॉडी मनो मिट्टी के नीचे दबाने के लायक है, समाज में रखने के लायक नहीं है। तो मैं कहा अगर इतनी बात सब समझते हो, बेटा बाप को मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया करता है, भाई अपने भाई को मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया करता है, भांजा अपने मामू को मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया करता है, भतीजा अपने चचा को मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया करता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी रूह निकल गई है। अगर इसका होते हुए भी उसको मिट्टी के नीचे दबाने के लायक समझता है, न नजर आने वाली रूह निकली तो जिस्म दबाने के लायक हो गया। और मुसलमानों न नजर आने वाला अकीदा और ईमान निकल जाए तो अब नमाज नहीं देखा जाएगा, क़याम नहीं देखा जाएगा, रोज़ा नहीं देखा जाएगा, हज नहीं देखा जाएगा, ज़कात नहीं देखा जाएगा, जुब्बा व दस्तार नहीं देखा जाएगा। उसकी जान निकल गई है, वो भी मनो मिट्टी के नीचे दबाने के लायक, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिट्टी के नीचे दबाने के लायक हो, वो अमाल काम नहीं करे। शायद आप सोचें क्या लफ्जों पे जोर देकर के जबरदस्ती अपनी बात मनवा रहे, तो मैं कहूंगा आप किसी मौलवी पर थोड़ा नहीं मान रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन तो बिल्लाह है, वह मलाइकतेही, वह कुतुबिही, वह रसूलिही, कहाँ किसी मौलवी का नाम लिया। आप तो कहते हैं आमन तो बिल्लाह है, वह मलाइकतेही, वह कुतुबिही, वह रसूलिही, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, आमन तो बिल्लाह है, वह मलाइकतेही, और ईमान लाया मैं अल्लाह
को तो दे ही और ईमान लाया मैं अल्लाह की किताब पर। अगर अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए हो तो जो सारी किताबों को मंसूब कर दी उस किताब का नाम कुरान मुकद्दस है। मुसलमानों उसी कुरान मुकद्दस को कल जाकर के देखना, आपको पता चलेगा। हम और आप इंसान हैं, अपने आप को समझें। तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम है। मुसलमानों आदम अलैहिस्सलाम को खुदा बनाना चाहा, अभी बनाया नहीं, अभी बनाया नहीं था, बनाना चाहा। उससे पहले रब्बे कायनात ने फरिश्तों से फरमाया, क्या फरिश्तों से फरमाया? ऐ फरिश्तों, मैं बजती हुई मिट्टी से, जो स्याह बूदार गारे की मिट्टी है, उससे एक बशर बना रहा हूं। मगर तुम लोग पहले सुन लो, वैसा सव्वैतु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसे बना करके तैयार कर दूं और उसके अंदर अपनी खास रूह डाल दूं। और ऐसा सव्वैतु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसे बना करके तैयार कर दूं, जिसे बना करके तैयार कर दूं, मैं बजती हुई मिट्टी से, जो मिट्टी स्याह बूदार गाय की मिट्टी है, उससे मैं एक बशर बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे बना करके तैयार कर दूं और वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब उसके अंदर अपनी खास रूह फूंक दूं, तो तुम उस वक्त क्या करोगे? रब्बे कायनात फरमा रहा है, वैसा सव्वैतुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं उसे बना के तैयार कर दूं और उसके अंदर खास रूह डाल दूं, तो तुम सब के सब उसके सामने सजदे में जाना, यानी सब उसको सजदा करो। बनाया नहीं, और सजदे का हुक्म पहले दे कि जब मैं बना के तैयार कर लूं और जब उसके अंदर अपनी खास रूह डाल दूं, तो ऐ फरिश्तों तुम क्या करना? सब के सब उसको सजदा करना। ये किसका हुक्म है? मुसलमानों, ये किसी दुनियादार नहीं, हम सबके परवरदिगार का हुक्म है। कहाँ है? ये दैनिक जागरण में नहीं है, सहारा इंडिया में नहीं है। मुसलमानों, ये तरक्की के जमाने में वो मोबाइल पे आने वाली खबरें नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और, ये प्रिंट मीडिया की खबर नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर नहीं। मुसलमानों सलाम अंदाजा लगाओ, ये बॉडी मीडिया की खबर नहीं है, बल्कि ये उस कुरान के अंदर है कि 1400 साल का ज़माना गुजर गया, दुनिया आज तक उसका एक नुक्ता न बदल सकी, और इंशाअल्लाह क़यामत तक दुनिया उसका एक नुक्ता नहीं बदल सकती। कुरान में जाकर के देखना, रब्बे कायनात ने फरमाया, जब मैं बना करके तैयार कर दूं, उसके अंदर खास रूह डाल दूं, तो फरिश्तों तुम क्या करना? तुम सब के सब उसको सजदा करना, यानी उसके सामने तुम लोग सजदे में जाओ। ये हुक्म किसका? परवरदिगार आलम का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दे दिया, और उसके बाद अब जसदे आदम को तैयार किया, आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार कर दिया, रूह को डाल दिया। वो जब रूह को डाल दिया तो अब तो हुक्म देना नहीं था, हुक्म तो पहले से मिल चुका है कि जब मैं इस काम को करूं तो तुम सब के सब उसके सामने क्या करना? फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब के सब सजदे में चले जाना। जैसे ही खुदा ने इस्लाम को अंजाम दे लिया, आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया और उसके बाद रूह को डाल दिया, तो फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, तो सब के सब फरिश्ते सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। सब सजदे में गए, मगर सजदे में नहीं गया तो अकेले कौन नहीं गया? वो इब्लीस गया। मुसलमानों में सोच में पड़ गया, चलो आज देख लो कि आज ही ये सजदे से भाग रहा है कि इससे पहले भी भागता। बात है, पहले ही पता लगा, क्योंकि अगर पहले भी भागता था और आज भी भाग गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं। अरे आपके गांव में कोई ऐसा हो जो एक वक्त की नमाज न पढ़ता हो, खुदा ना करे कि ऐसा कोई हो, मगर मान लीजिए कोई ऐसा हो कि एक वक्त की नमाज न पढ़ता हो, मस्जिद न आता, वो फजर के वक्त न पहुंचे, तो इमाम साहब को और नमाजियों को ताज्जुब होगा था कि फलाना कहाँ नहीं है, ताज्जुब होगा? किसी को ताज्जुब नहीं होगा। क्यों? कि किसी दिन नहीं आता था, आज नहीं आया, इसमें क्या ताज्जुब है? मगर मोहल्ले का कोई ऐसा हो जो पाबंदी से आता हो,
हर वक्त आता हो, सबसे पहले मस्जिद में आ जाता हो, वो किसी वजह से अगर फजर के वक्त में पहुंचे तो इमाम साहब भी सोचें कि यार उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, कहीं चला तो नहीं गया, क्या बात है वो नहीं आया, वो तो सबसे पहले आता। तो ताज्जुब कब होगा? जब वो पहले से आता था और आज ना आए तब तो ताज्जुब होगा। कभी नहीं आता था, आज वो नहीं आया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुसलमानों सब सजदा किए, अकेले सजदा कौन नहीं किया? तो अकेले सजदा इब्लीस नहीं किया। जब नहीं किया तो मैं कहूँगा आओ पहले पता लगाओ कि ये पहले भी नहीं करता था कि आगे सिर्फ नहीं किया है। वो अंदाजा लगाओ, अगर पहले करता था और आज नहीं किया तब तो ताज्जुब की बात है, और पहले भी नहीं करता था आज वो नहीं किया है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। जब वो पता लगाया तो पता चला तू चला है उसके सजदे का पता लगाने के लिए, वो तकरीबन 6 करोड़ बरस तक सजदा किया है। इतना सजदा किया है कि उसके सजदे को उसके जमीन पे फैला दिया जाए तो राई रखने के लिए जगह न बचे। वो इतना सजदा किया है, तू चला है उसके सजदे का पता लगाने के लिए, उसके सजदे को तू गिन नहीं सकता, इतना सजदा किया है। जमीन पे राई रखने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ वो सजदा न किया हो, इतना सजदा किया है। तू चला उसका सजदा मालूम कर। उन्होंने कहा अरे नादान, जब इतना सजदा किया था तो जैसे इतना किया तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये भी अल्लाह ही का हुक्म था, एक और कर लिया होता। जब इतना किया तो तुझको नहीं दिक्कत हुई तो ये करने में तुझे दिक्कत क्यों होने लगी? तो उसने कहा तुम तेरी तरह से 4 किताब पढ़ के थोड़ो ना मौलवी बना, वैसे ही मैं मुअल्लिमुल मलाइका थोड़ो ना पढ़ा, फरिश्तों को वैसे थोड़ो ना कहा था। तेरी तरह से 4 किताब पढ़ करके नहीं आगे पढ़ा, मैं कहा मेरे पास बहुत इल्म। तू जानता है ना कि जो 6 करोड़ बरस तक सजदा किया वो भी सजदा, और जिससे भागा ये भी सजदा, मगर तू नहीं जानता कि दोनों में फर्क है। मैं कहा वही फर्क तो मैं जानना चाह रहा हूँ, बता दे कि फर्क क्या है कि 6 करोड़ बरस तक सजदा किया तुझको दिक्कत नहीं मालूम हुई और एक सजदे का हुक्म था तो यहाँ तुझको इतनी दिक्कत होने लगी। कहा फर्क जान ले, जो इससे पहले मैं सजदा किया था वो सब सजदे ताअब्बुदी था, यानी वो खुदा की इबादत का सजदा था, और जिस सजदे से मैं भागा हूँ ये सजदे ताअब्बुदी नहीं, ये सजदे तासीनी है। मैं तासीनी सजदे से भागा हूँ। मैंने कहा अपनी बेहतरीन पहचान तूने दे दी है, कयामत तक तू पहचाना जाएगा इसी की बुनियाद पर। इबादत से कभी नहीं भागेगा, जब भागेगा तो नबी की तासीम से। मगर वही अकेले सजदा नहीं किया, और वजह क्या बताया? जो सजदा मैं किया था वो सजदा ताअब्बुदी था, वो इबादत का सजदा था। वो आदम अलैहिस्सलाम को थोड़ा ना सजदा कराया, क्या बात है? वो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं सजदा कराया जाता। आप इसको अच्छी तरह से जान लीजिए। आज आप नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं ना, तो कहते हैं मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, मगर काबे को सजदा नहीं करते। है आपका वो किबला बना है, काबे को सजदा नहीं करते। आप उसको किबला मानते हैं, काबे वाले का सजदा करते हैं, खुदा को सजदा करते हैं, मगर काबा एक किबला बना हुआ है। मुसलमानों वो किबला बना हुआ है। ठीक आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त किबला बने हुए थे, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं था, वो तो नूरे मुस्तफा मुसलमानों जरा अंदाजा लगाना, सोचना हुआ क्या? सब सजदा किए नहीं किया, वजह क्या बताया? कि जो मैं इबादत का सजदा किया वो इबादत का था, जिससे भागा वो तासीम था। मैंने कहा बस तूने अपनी अच्छी पहचान दे दी, अब इससे तू भी पहचाना जाएगा और कयामत तक तेरे चाहने वाले भी पहचानेंगे, इसी से पहचाने जाएंगे। इबादत खूब करेंगे मगर कब भागेंगे? जब नबी के
तासीम की बात आएगी, तासीम नबी से भागेंगे। मुसलमानों, वो तासीम नबी से भागा, अपनी भी पहचान दे दिया और अपने चाहने वालों की भी पहचान दे दिया। मैंने कहा चल अब तेरी पहचान तो मिल गई कि तू इबादत से कभी नहीं भागा, जब भागा तो नबी की तासीम से भागा। आज भी उसके चाहने वाले हैं, इबादत तो इतना करते कि लोग हमसे आके कहते हैं आप उसको पूरा करते हैं, इबादत तो वो करते हैं, बेशक आसानी से हो जाती, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, वो देखो जहाँ देखो वो नमाज पर नमाज, नमाज पे नमाज, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा। मिसवाक उनका जेब में ऊपर की तरफ दिखाई देता है, यानी मिसवाक करना मकसद कम है, लोगों को दिखलाना ज्यादा, दिखलाना ज्यादा। मुसलमानों जरा अंदाजा लगा लेना, सोच लेना। तो नमाज वो दिखलाते हैं, मगर मुसलमानों आप जान गए ना, वो रूह जो नजर नहीं आती निकल जाए तो पूरा किस्म बेकार है। मुसलमानों अगर वो अकीदा और ईमान निकल जाए तो नमाज है मगर बेकार है, रोजा है मगर बेकार है, सजदा है मगर बेकार है। वरना क्या कहोगे, करबला में इधर भी नमाज उधर भी नमाज, इधर भी कुरान उधर भी कुरान, इधर भी अज़ान उधर भी अज़ान, मगर क्या वजह है इधर 72 है और उधर 22,000 है। क्या वजह है नवाज़े नबी उनकी इब्तिदा में जाके एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े हैं, इमाम हुसैन नहीं पढ़े हैं, जो नाना की गोद में पढ़े हैं, करबला की धरती से पैगाम दे दिया नमाज पढ़ना मगर इमाम को देख करके पढ़ना। करबला हमको सबक पढ़ा गया, करबला से नबी के नवासे ने बता दिया, बस अहिया के मौलवी की मानो या ना मानो, करबला वाले के दीवाने हो हुसैन के, हुसैन का पैगाम याद रखना। करबला की धरती पे उन्होंने बता दिया नमाज पढ़ना, मुक्तदी पढ़ना मगर इमाम को पहले देख लेना, सब नमाज पढ़ने वाला चीजें नहीं है तो नमाज देख के धोखा ना खाना, रोजा देख करके धोखा ना खाना, चुप्पा का साथ देख करके धोखा ना खाना। मुसलमानों बता दिया आप मेरी ना मानो मगर हुसैन के नाम का खुतबा पढ़ते हो, सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक हक है, हक है। मान लो देख लेना है कि नहीं हुसैन, हम हुसैनी हैं, हुसैनी पैगाम हमको याद रहेगा। कहा वो सजदा नहीं किया, अच्छा सजदा नहीं किया तो मुझको नहीं पता कि क्यों नहीं सजदा, मुझको नहीं पता, आपको नहीं पता, मगर क्या कोई बंदा ये कह सकता है कि पोता को भी इल्म नहीं था कि क्यों सजदा नहीं किया? वह तो अलीम बेसाती सुकून है, वह तो दिलों के राज को जानता है, दिलों के राज को जानता है। ये अल्लाह वाले क्या क्या जानते हैं। आपने सुना है ना, 1 रुपये 1 दिरहम 2 दिरहम में किस बहलोल दाना ने सुबैदा खातून को जन्नती महल दे दिया, यही सोच करके दूसरे दिन हारून रशीद न पहुंचा था। और जब दूसरे दिन हारून रशीद पहुंचा था यही सोच करके जब पहुंचा हारून रशीद कि जैसे जुबैदा को मिल गए चंद दिरहम में, वैसे भी मुझको भी जन्नती महल में जाएंगे चंद दिरहम, यही सोच के गया ना, सोच के गया। और जब गया तो जाकर के पूछा बाबा ये क्या बना रहे हैं? कहा जन्नती महल। कहा बेचेंगे आप? हाँ, दाम और तो तेरी आती हुकूमत। कदम हिल गए। अभी कल आपने दिया है चंद दिरहम में, आज जन्नती महल की कीमत हमारी आती हुकूमत। तो क्या कहा था पहले दाना में? अरे सुबैदा ने मुझ पर यकीन किया, जन्नती महल खरीदा, चंद दिरहम में दे दिया, यूं नून बिल गए, बिन देखे ईमान था। हमने चंद दिरहम में दे दी, मगर तू तो रात में वो महल देख करके आया, देखा और उसके ख्वाब को अल्लाह वाला बता रहा है। ख्वाब तुम देखो, अल्लाह वाले उसका पता बताते हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं। मुसलमानों जरा सोचना, गौर
सजदा नहीं किया तो रब्बे कायनात ने क्या फरमाया, काला या इब्लीसो मा लका अल्ला तकूना मास साजिदीन। और रब ने फरमाया इब्लीस क्या हुआ, सब सजदा किए तू सजदा करने वालों से अलग क्यों रहा, किसने तुझको रोका, सजदा करने से किसने रोका, सब तो सजदा किए तू क्यों नहीं किया, तू क्यों अलग रहा। मैं सोच में पड़ गया परवरदिगारे आलम जो बसैया और पटौना का मौलवी पूछता तो बात समझ में आती, तुझे पूछने की क्या जरूरत है, क्या तू नहीं जानता कि वो क्यों नहीं सजदा किया, क्यों सजदा करने वालों से अलग रहा, तुझे पूछने की जरूरत क्या। कहा यही तो मैं बंदों के ऊपर करम फरमा रहा हूँ, मैं तो जानता ही हूँ कि वो क्यों नहीं किया, मगर मेरे बंदे कैसे जानेंगे, मेरे बंदे उसको पहचानेंगे कैसे। आज उसी की जुबान से मैं कहवाना चाहता हूँ ताकि वो बोल दे कि कयामत तक मेरे बंदे उसकी बोली की बुनियाद पर उसको पहचानते रहेंगे, देख करके धोखा नहीं खाएंगे, अब उसकी दस्तार देख करके धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए मुझे तो इल्म है कि क्यों नहीं किया, मगर पूछ इसलिए रहा हूँ कि तू बोल दे ताकि तेरे अंदाज़े बयान से मेरे बंदे तुझको पहचानते रहेंगे। क्योंकि तू किसी मुफ्ती की जुबान पर बैठ करके बोलेगा, किसी जुब्बे और दस्तार वाले की जुबान पर बैठ करके बोलेगा, मेरे सीधे साधे बंदे देखेंगे ये नमाजी बोल रहा है मान लो, ये आलिम बोल रहा है मान लो, ये मुफ्ती बोल रहा है मान लो, ये हाजी बोल रहा है मान लो, और उनकी जुबान पे तू बोलेगा, बंदे पहचानेंगे कैसे। इसलिए तू वजह बता, तेरे अंदाज़े बयान से मेरे बंदे तुझको पहचानते रहेंगे। पता क्या वजह है कि तू सजदा नहीं किया, तो जानते हो उसने वजह क्या बताई, उसने वजह बताई वो भी मैं अपने पाक के घर से नहीं, कुरान पाक से बताऊं। उसने कहा मौला मुझको सेब नहीं कि मैं एक बशर को सजदा करूं जिसको तूने बजती हुई मिट्टी से बनाया है। मैं सोच में पड़ गया, उसने न करने की वजह क्या बताई, वजह ये बताई कि परवरदिगारे आलम इनको तूने मिट्टी से बनाया है, अब मुझे सेब नहीं कि मैं उसको सजदा करूं जो मिट्टी से बनाया गया, उस बशर को सजदा करूं जिसे को तूने मिट्टी से बनाया है, इसलिए मुझको सेब नहीं दिया और मैं सजदा नहीं किया। मुसलमानों यहाँ रुक करके एक बात कहूं, वही अकेले देखा था कि मिट्टी से बने हैं, वही अकेले देखा था कि ये मिट्टी से बने हैं। आज जो तमाम फरिश्ते सजदा में गए वो नहीं देखे थे क्या, वो भी देखे थे ना, बेशक, तो उनको भी आ जाना चाहिए क्योंकि फरिश्ते तो नूर से बने हैं, ये इनकार करने वाला नार से बना है, वो आग से बना था उस वक्त फरिश्तों की जमात में, फरिश्ता नहीं वो आग से बना। जो नूरी फरिश्ते वो सजदे में चले गए, क्या वो नहीं देखे थे कि ये मिट्टी से बने हैं, ये वो देखा था, यही सिर्फ देखा था। तो सूफिया आज जो आरिफिल्लाह होते उनकी जमात कहती है तुम नहीं जानते, इनकारे सजदा के वक्त वो आदम को देखा, आदम ने नहीं देखा, वो आदम को देखा, आदम ने नहीं देखा। अगर आदम को देखा तो मिट्टी देखा कि मिट्टी से बने हैं, अगर आदम ने देखा होगा तो नूरे मुस्तफा देखा होगा। आदम को देखा, आदम ने नहीं देखा, ये सूफिया फरमाते हैं मुसलमानों, यानी ऊपर देखा अंदर नहीं देखा, अंदर नहीं देखा ऊपर देखा। मगर ये बीमारी सिर्फ उसी को नहीं थी कि सिर्फ ऊपर देखा अंदर नहीं देखा, ये बीमारी सिर्फ उसी को नहीं थी, उसके शागिर्दों को भी वही थी, वो भी ऊपर ही देखते, वो भी अंदर नहीं देखते। बसा औकात कहते हैं यार कारोबार छोड़ करके ये अजमेर क्या कर लेगा, पूरा राजस्थान पथरीली जमीन, कंकड़ नजर आता, पत्थर नजर आता, वहाँ क्या करने जाते। मैंने कहा अरे साली ऊपर ही ऊपर देखा है, अंदर देख अंदर, कहा ऐसा वैसा शागिर्द छोड़ो ना हो, मैं बड़ा अच्छा बड़ा पक्का शागिर्द हूँ, उस्ताद ने कब अंदर देखा था, क्या बात है, उस्ताद ने कब अंदर देखा था, वो भी तो ऊपर ही देखा था, आदम को देखा था, आदम ने कहाँ देखा था, वो भी ऊपर देखा था, वो कहाँ अंदर देखा था। मैं उसका शागिर्द हूँ, जब उस्ताद ने नहीं देखा अंदर तो ये शागिर्द क्यों अंदर देखने जाए, बेशक बेशक बेशक
रब्बे कायनात ने क्या फरमाया, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जन्नत से तू मरदूद हो, निकल जन्नत से निकल, तू मरदूद हो गया। मुसलमानों, उसके 6 करोड़ बरस के सल्ते अगर ना बचा सके, अंदर था जन्नत में, फिर भी निकाल दिया गया यही गलती करके, तो मुसलमानों यही गलती वो अंदर रह करके किया था, तो अंदर से बाहर कर दिया गया। वही गलती ये बाहर माना कर दे तो इसका जुब्बा जन्नत में नहीं पहुंचाएगा, इसका सल्ता जन्नत में नहीं पहुंचाएगा। कितना सल्ता करेगा, कितनी नमाज पढ़ेगा, कितना रोजा रखेगा, वो तो 6 करोड़ बरस तक सल्ता, 6 करोड़ बरस तक सल्ता किया था। शायर कहता है, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। मुसलमानों सलाम नासा लगा लो, और वहाँ अमल था अकीदा जैसे ही बिगड़ा मरदूद हो गया, जैसे ही बिगड़ा मरदूद हो गया। मुसलमानों, एक हदीस बड़ा लोग रटाते हैं, हर साइंस के लोगों को हदीस याद, हर साइंस के लोगों क्या, कुल्लो बिदातिन दलाला, कुल्लो बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही, हर बिदात गुमराही, ये सबको उनको मालूम है, हर बिदात गुमराही। मुसलमान, ये हदीस उनके अंदर हर साइंस के लोगों को याद है, मैं कहा वही समझ लेते। आदमी गुमराह किससे होगा,